Assalamu alaikum, welcome back to my channel and here's a story time. As मैंने आप लोगों को कहा था long back that the story is due. तो आप सब जानते ही होंगे from my previous vlog that I went to Delhi for some official work. लेकिन I had a blast in Delhi. I really loved that place. But it's a hub for crime. Criminals are everywhere and Delhi police, oh my god, I don't want to talk about that. I might get into trouble. Anyways, so it was a fine day, normal. I'm not very good at telling stories, but I'm trying to. I hope aap log samajh jaye. What happened was ki it was a Ramadan time and we spent almost our Ramadan in Delhi this time. It was a different and very nice experience. I really loved it. I enjoyed it thoroughly. Alhamdulillah for that blessing. So one fine day when we got done with our work, I was just lying down and I told my husband that weather looks great to be sitting idle at home. And I thought we'll go for shopping, but he had some other plans. So before I start the story, let me just inform you about my husband's friend. I will not name him because, of course, privacy matters. But yeah, my husband's friend, may Allah bless him, amazing help for us, and he really made us feel home in that city. So, my husband, contacted him that let's go out and let's have iftar outside. So they both made a plan. I was like, okay, fine, I'm happy to go. We decided to go and open our iftar at Jama Masjid. Okay, I really like that place. I've heard about it a lot, but I had a very bad experience. Oh my god, not that great. So we were happy. We went there with all our preparation. वो अपने घर से लेकर आए थे सब कुछ हमारे लिए. हमने इफ्तार platter सजाया and we started waiting for the adhan. And let me tell you, never go for opening your iftar in Jama Masjid. Even just to enjoy the view because it's extremely beautiful. But do not go because इतनी ज़्यादा बेपर्दगी है वहाँ पे. I want to really talk about this thing later in my video. But just warning you all. So it was a big mistake. We already realized it. लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि this moment is going to turn into so much, stressful. हमने इफ्तारी करी. We offered Maghrib and that was an amazing experience. Alhamdulillah, I really enjoyed that. फिर हम वेट करने लगे कि जो क्राउड है वो थोड़ी कम हो जाए तो हम निकलेंगे एंड वी वर सिटिंग देयर और मैंने जो अपनी क्रॉक्स है ना आई केप्ट इट इन अ पैकेट बिकॉज मुझे हाथ में कैरी करना नहीं था एंड इट वाज क्वाइट सेफ कि कोई चप्पल ना चुरा ले तो बिकॉज आई यूज्ड टू डू द सेम थिंग व्हाइल डूइंग उमराज. अच्छा, वहाँ की जो मौज़िन है ना वो हर 5 मिनट्स में अनाउंस कर रहे थे, द अनाउंसर व्हाटएवर जो भी थे, कि आप अपने मोबाइल को अपने हाथों में टाइटली पकड़ के रहें, यहाँ बहुत सारे चोर हैं और अपने बच्चों का भी ख्याल रखें. एंड आई वाज लाइक इतनी बार क्यों कह रहे हैं, लाइक हो गया ठीक है. आई डिडंट नो द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन अंटिल थिंग्स चेंज्ड. तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, वी वर वेटिंग कि हम क्राउड कम हो जाए तो वी विल लीव. सो हमें क्राउड लगा कि कम हो गया तो हमने कहा चलो अब चलते हैं बिकॉज वी हैड सम वर्क टू डू. तो हम निकल गए एंड वाइल गोइंग आउट, I kid you not, and trust me, guys, while leaving, my husband asked me, where is your phone? Keep it in your hand. And I'm saying, no, it's in my pocket, and the pocket is quite deep. Nobody will, put their hand through my pocket and take out the phone. That's not possible because if somebody does that, I will get to know. And he said, no, no, just keep it in your hand. And I was like, okay, I held my phone in my pocket because that was a little safer. आपके हाथ से भी कोई लेकर जा सकता है. तो मैंने अपनी फ़ोन को अपनी पॉकेट में ही पकड़ा एंड इट वाज सेफ, इट वाज फाइन. तो अब हम लोगों के साथ क्राउड के साथ वी वर मूविंग फॉरवर्ड. मेन डोर के पास वी केम एंड व्हाट हैपेंड वाज कि मुझे अपने पैकेट से अपनी क्रॉक्स निकालनी थी. तो मैंने अपने फ़ोन को जस्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आई लेफ्ट इट एंड मैंने पैकेट यूँ ऐसे डाला ताकि शूज़ जो है वो क्रॉक्स जो बाहर आ जाए. I wore it. Again, I kept my hand pocket में and it was gone. I was so shocked. And shocked से ज़्यादा मैं डर रही थी कि what will I tell my husband because he was literally asking me
keep that phone in my hand. एंड आई वॉज लिटरली शॉक्ड. जल्दी जल्दी कहा अपने हस्बैंड को, उन्होंने अपनी फ्रेंड को जो हमारे साथ थे, एंड ही वी वेंट आउट. वहाँ पे बहुत सारे पुलिस थे एंड हमने उन्हें कंप्लेन किया एंड वी सेड कि ऐसा ऐसा हो गया. उन्होंने कहा राइट नाउ, एग्जैक्टली राइट एंड नाउ, इस टाइम पर एटलीस्ट 20 फोन्स चोरी हुए हैं. And then I realized ki why the announcer, the Muazzin Saab, was continuously, focusing on this thing and announcing कि आप अपने फ़ोन का और बच्चों का ख्याल रखिए, because that place. And I never expected people would literally steal from the premises of masjid. I'm kind of shocked, but how do they even get that heart and mind? That I don't know. So, coming back to the story, we went to the police station, we filed a complaint. But the police said कि we can't find your phone because they need some number and we were traveling, तो हमारे पास phone का box नहीं था and the house was locked. So basically we kind of lost hope. So कुछ ही देर में after the police complaint, I told my husband कि please block the SIM. So he said okay, we will, let's reach home and then we'll block the SIM. I was like okay. Then फिर हम चलने लगे. उतनी ही देर में my husband was trying to call my number which was switched off. But थोड़ी ही देर में वो किसी ने ऑन किया एंड दे रिसीव्ड. एंड उन्होंने एक अलग सा नाटक लगाया कि आपका फ़ोन मेरे पास है और हमने जो है वो चोर से लिया है, उसके पास मेरा भी फ़ोन है बट उसका फ़ोन नहीं मुझे मिला, बट आपका फ़ोन हमारे हाथ आ गया, तो प्लीज़ आप लॉक स्क्रीन पासवर्ड बताएं सो दैट वी नो दैट दिस इज़ योर फ़ोन. हाउ डम्ब द थीफ वॉज, टू बी ऑनेस्ट. जैसे लगा कि वी वुड डू दैट. But yeah, I wouldn't blame because a lot of naive people are there जो दे देते होंगे अपने लॉक स्क्रीन का पासकोड. तो मैंने कहा नो, नॉट पॉसिबल, हम नहीं दे रहे हैं, आई डोंट बिलीव इट. उससे कहें कि आए एंड गिव आवर फ़ोन बैक. तो हमने उसे एक लोकेशन दे दी बट वी न्यू ही वुड नॉट शो. तो हमने अब उसे अल्लाह के हवाले कर दिया एंड वी थॉट कि चलो इसमें भी कुछ खैर होगा, मेरी लापरवाही थी. But whatever, happens for good. तो हम गए घर. My husband was a bit furious about it because he was like, you didn't listen to me, etc. The husbands are. Um, cut short, we came back home and I was about to sleep and I received a message from someone who said that कि आपके WhatsApp से मुझसे कोई पैसे मांग रहा है. And unfortunately, that sister, we never even interacted much ever. But she somehow felt that it was me asking money because I'm traveling, so I might be in trouble. And she, with a good intention, gave him that amount. It was good for me because I will tell you, वो मैं आपको बताऊंगी बहुत जल्द. लेकिन उस टाइम पे आई वॉज कम्प्लीटली शॉक एंड शी वाज सेइंग प्लीज़ रिटर्न, आप कैसे भी मुझे पैसे वापस करें बिकॉज वो किसी काम के हैं. आई वॉज सो, आई डोंट नो. एक तो आई वॉज स्कैर्ड कि आई हैव टू टेल माई हस्बैंड एंड थिंग्स आर लाइक दिस getting worse, and I was like कि अभी इनको कह रहा है, then that person will text everyone. And that's what happened. अच्छा, ये हुआ इसलिए क्योंकि हमने सिम ब्लॉक करने में टाइम लगा दिया. मैंने ऑलरेडी कहा था कि मस्जिद के बाहर लेट्स ब्लॉक द सिम, बट वी वर वेटिंग कि हम घर जाएंगे. तो हमने ब्लॉक किया बट तब तक उस बंदे ने किसी और डिवाइस में मेरा सिम यूज़ कर लिया एंड व्हाट्सएप ओपन कर लिया एंड वट एवर जो OTP लगती है, बिकॉज आईफोन खुलता नहीं है. एंड इफ़ समवन इवन ट्राइज टू ओपन आईफोन लॉक स्क्रीन बार बार तो वो लॉक हो जाता है. एंड व्हेन यू हैव टू री ओपन योर आईफोन तो इट रीसेट्स योर डेटा. सो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट आईफोन. वो जो है ना, उसने वो स्कैम करी एंड आई वाज लाइक एवरीबडी स्टार्टेड कॉलिंग माय हस्बैंड, टेक्सटिंग कि पीपल आर आस्किंग फॉर मनी, ये वो. तो मैंने हस्बैंड से कहा हम जिन जिन कॉमन ग्रुप में हैं प्लीज़ टेक्स्ट देम दैट माय फ़ोन हैज़ बीन स्टोलन, डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी मैसेजेस. और हमारे जितने क्लोज मेंबर्स हैं हमने उनसे भी कह दिया एंड कहा कि आप इस मैसेज को फॉरवर्ड कर दें. माय फ्रेंड्स, फैमिली, कोलीग्स, एवरीवन. बट व्हाट आई डिड, आई आस्क्ड माय दैट फ्रेंड जिन्होंने पैसे दिए, मैंने कहा आपने किस क्यूआर पे पैसे दिए, प्लीज़ गिव दैट क्यूआर टू अस. उसने क्यूआर कोड भेजा. आई नोटिस दैट उस क्यूआर कोड में एक नंबर है एंड आई इमीडिएटली आस्क्ड माय हस्बैंड कि प्लीज़ फाइंड आउट दिस नंबर. फिर उन्होंने उनके फ्रेंड के साथ, लाइक इट वाज अराउंड 4 AM, दे डिडंट स्लीप, दे वर लिटरली डूइंग ऑल दिस, दे डिडंट स्लीप.
दे कॉल्ड अप दैट नंबर फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सिम, और फिर हमें पता चला कि वो कोई स्कैमर है। वो चोर नहीं है, उसका काम है जस्ट लोगों से पैसे लेना उस चोर के लिए, यू नो, ऑन बिहाफ ऑफ द थीफ। मेरा व्हाट्सएप डिलीट नहीं हो रहा था बिकॉज मुझे सिम चाहिए वापस से, ताकि मैं अगेन लॉग इन करूँ व्हाट्सएप पे, फिर वो डिलीट हो वहाँ पे। तो ये एक इशू था एंड देयर वाज और दूसरे दिन ना इंडिया में होली थी एंड एवरीथिंग वाज क्लोज्ड, सो वी हैड टू वेट अगेन वन डे। तो खैर हमने बहुत लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था, सो वहाँ पे एक रिलीफ थी। तो मेरे हस्बैंड और उनके फ्रेंड जो है ना, इन्होंने कहा हम तो अब इस चोर को नहीं छोड़ेंगे। तो इन्होंने पता नहीं, आई डोंट नो हाउ द डिटेल्स, बट मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की कोई फ्रेंड डिफेंस वगैरह में है एंड दे यू नो टुक आउट एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट द थीफ। एंड वो लिटरली मेरे हस्बैंड और उनकी जो ग्रुप है फ्रेंड की, वो उसके घर पहुंच गए, बट बाहर से। उन्होंने देखा वो कहाँ रहता है एंड दैट एरिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एरिया इन दिल्ली, आई किड यू नॉट। तो उन्होंने दूर से देखा एवरीथिंग एंड देन दे केम बैक। उसके बाद जो हस्बैंड की फ्रेंड जो हमें हेल्प कर रहे थे, उन्होंने पता किया अबाउट द थीफ एंड हाउ, आई डोंट नो, एरिया के कुछ जिम के लड़कों को साथ में लिया एंड दे वर रेडी टू हेल्प। वो सब उसके घर गए और लिटरली चोर के घर से मेरा फ़ोन वापस आया है एंड आई एम रिकॉर्डिंग ऑन दैट फ़ोन राइट नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई डिडंट इवन थिंक कि मुझे फ़ोन मिलेगा। बट द मेन पॉइंट व्हाट आई वांट टू शेयर इज़ दैट दिन ये फ़ोन चोरी हो गया एंड व्हाटएवर हैपेंड, मैंने तहज्जुद स्टार्ट कर दी ओनली फॉर फ़ोन। लाइक बाकी डेज़ में तो हम पढ़ते ही हैं फ़ोन की दुआ की, या अल्लाह की व्हाटएवर खैर हो, बट पीपल स्कैम ना हो मेरे नाम पे, और मेरे नाम पे कोई ऐसे फ्रॉडुलेंट फाइनेंस फ्रॉड्स ना हो। एंड आई वाज लिटरली अपसेट। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस थिंग हैपेंड। एंड जिस दिन फ़ोन चोरी हुई थी प्रेमिसेस में जब हम ढूंढ रहे थे, देयर वाज दिस ओल्ड अंकल, ही सेड कि अगर आपका माल हलाल है ना, तो आपकी चीज़ कहीं नहीं जाएगी। एंड दैट स्टक इन माई माइंड बिकॉज आई एम अ बिग टाइम बिलीवर ऑफ दिस थिंग। एंड विद इन सारे इंसिडेंट में मैंने 3 चीज़ सीखी हैं। पहला ये कि इफ समवन इज एम्फसाइजिंग कि आप ये करें, इसको सेफ रखें, इसको ऐसे रखें, देन डू इट, because maybe the sixth sense, you know, they feel it, and that is why या वो पर्सन आपसे कह रहा है। सेकंड, तवक्कुल on Allah subhanahu wa ta'ala. It works magic. It does wonder. थर्ड, हलाल की कमाई कभी ज़ाया नहीं होती। हलाल की कमाए हुए पैसों से कोई चीज़, लाई हुई चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचेगी, ना नुकसान होने देगी, अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस वाज द स्टोरी। एंड अबाउट जामा मस्जिद, तो बहुत ही ज़्यादा बेपर्दगी हो रही है वहाँ पे एंड पीपल शुड एक्चुअली वर्क ऑन दैट, but I don't think so कि it's possible to control the crowd. It's one of the oldest place and it's extremely overcrowded, so I might never step in there ever again. But yes, overall I loved Delhi. It's a beautiful place. हाँ, pollution issue है, but a lot of things are good about Delhi, and I enjoyed my stay. I might come back with another story time because my life is full of incidents and things keep happening to me and they are worth sharing. So, yeah, if you all liked my video, do like it, subscribe to my channel, and support my content creation journey. Jazakallahu khairan.